Take out illustration number 78. Illustration number 78, page number 7.140. देखिए लिखा है ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स और ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर. ये कंपनी है अपने 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 1 लाख शेयर इशू कर रही है और ₹10 प्लस 1 ईच के हिसाब से और ₹10 प्लस 1 ईच के हिसाब से. तो 10 का शेयर 11 में इशू हो रहा है, मतलब शेयर इशू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे. पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. यानी अलॉटमेंट कितना हो गया आपका 2 + 1. तो 3 में आपका 2 तो कैपिटल है एंड 1 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. पेबल 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल. तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10. तो आउट ऑफ 10 3 एप्लीकेशन में मंगा लिए, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे. तो 3 + 3 6 + 2 8. तो 10 में से 8 हो गया, रिमेनिंग कितने बच गए 2. तो ये 2 अपन मंगा रहे कहाँ पे, सेकेंड कॉल पे. तो कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर वर रिसीव. टोटल 1,60,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई. 1,60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. अब अलॉटमेंट कैसे हुआ, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा. इन ए कैटेगरी एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर्स गॉट 40,000 शेयर्स. एप्लीकेंट इन बी कैटेगरी, एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स, एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स गेट 40,000 शेयर्स. And in C category, applicant of 20,000 shares, applicant of 20,000 shares get full shares. तो इनको पूरे 20,000 shares क्या हुए, अलॉट हुए. Excess money paid on applications to be adjusted against the amount due on allotment and call. Rishabh, one shareholder, Rishabh, one shareholder Rishabh who applied for 1,500 shares, जिसने 1,500 shares के लिए अप्लाई किया था, वो applied for 1,500 shares, belongs to category B, जो आपकी B कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, belongs to category B, did not pay allotment first and second call and final call, did not pay allotment, did not pay allotment first and second call, did not pay allotment first and second call. Another shareholder Sudha, another shareholder Sudha who applied for 1,800 shares, who applied for 1,800 shares, who applied for 1,800 shares belong to category A, and she belongs to category A, did not pay the first and second call money. इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा. All the shares of Rishabh and Sudha were forfeited after second call. Rishabh and Sudha share is forfeited by the company. All the shares of Rishabh and Sudha, जितने भी शेयर्स थे ऋषभ के और सुधा के, वर री इशू. इन शेयर्स को अपन ने क्या करा, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू एट ₹7 पर शेयर. किसके हिसाब से, 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से दोबारा री इशू कर दिए. 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से क्या करे, री इशू कर दिए. पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. Calls in arrear account, open calls in arrear account and calls in advance account whenever required. क्वेश्चन समझ में आ गया. कंपनी है 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 + 1 के हिसाब से मतलब ₹11 में. पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट
including premium, payable 3 on first call, payable 2 on second call. 1,60,000 application were received. Out of 1,60,000, 90,000 share get 40,000 share, 50,000 share get 40,000, and 20,000 get full allotment 20,000 share. One shareholder Rishabh, who applied for 1,500 share, belongs to category B, failed to pay allotment first and second call, and after second call his share is forfeited by the company. Another shareholder Sudha, who applied for 1,800 shares, belongs to A category, did not pay first and second call money, and after second call his share is forfeited by the company. After forfeiture, all the shares were reissued rupees 7 per share, fully paid up. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट व्हेन नेसेसरी. नाउ राइट फर्स्ट एंट्री. Write first entry for application money received. Write first entry for application money received. कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,60,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई है. तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. Bank account debit to share application 1,60,000 into 3. 1,60,000 into 3. Second entry होगी for allotment of shares. कितने shares allot करने अपन को? 1 lakh. कितने shares allot करने अपन को? 1 lakh. तो second entry is for allotment of shares. Entry will be share application account debit. Share application account debit 1 lakh into 3 to share capital 1 lakh into 3 to share capital 1 lakh into 3. Next entry होगी for allotment money due. So journal entry for allotment money due is share allotment account debit 1 lakh into 3 to share capital 1 lakh into 2 and to securities premium 1 lakh into 1. टोटल अलॉटमेंट कितने का था? 3 का. 3 के अंदर 1 रुपीज का क्या इंक्लूड था? सिक्योरिटी प्रीमियम. तो 2 तो कैपिटल के हो गया, 1 का हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम का. नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन को पास करनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. लेकिन यहां पे क्या हुआ? एक शोल्डर था जिसको अपन ने 1 लाख शेयर्स इश्यू करने थे, लेकिन 1,60,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई. तो 60,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? एक्सेस में रिसीव हो गई 60,000 एप्लीकेशन. तो ये जो 60,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हुई है, तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है, इसको आगे अपन ने कहां पे एडजस्ट करा है? इसमें से कितना अमाउंट अपन ने अलॉटमेंट, कितना फर्स्ट और कितना सेकंड कॉल पे एडजस्ट किया है, और कितना अमाउंट अपन ने रिफंड करा है, तो उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बताएंगे क्या? वर्किंग नोट. देखिए first column is total application money received. Second column is adjusted on application. Next column is adjusted on allotment. Next column is adjusted on first call, and last column is refund.
नाउ देयर आर 3 कैटेगरी. सबसे पहले ए कैटेगरी. कितनी एप्लीकेशन आई थी ए कैटेगरी में? 90,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर. तो कितना रिसीव हुआ आपको? 2,70,000. कितना रिसीव हुआ? 2,70,000. कितने शेयर्स अलॉट हुए थे इस कैटेगरी में? 40,000. सो 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 आपका एडजस्ट हो गया कहाँ पे? एप्लीकेशन पे. तो कितने रिसीव हुए थे? 2,70,000. आउट ऑफ 2,70,000 1,20,000 एडजस्ट हो गया कहाँ पे? एप्लीकेशन पे. रिमेनिंग कितना बचा? 1,50,000. रिमेनिंग कितना है? 1,50,000. अब इनसे कितना मंगाना है अलॉटमेंट पे? 40,000 शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर. तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,20,000 होता है. लेकिन अभी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 1,50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है. तो 1,50,000 में से 1,20,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे कहाँ पे? अलॉटमेंट पे. समझ में आई बात? ए कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 40,000 एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर. तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,20,000. लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 1,50,000. 2,70,000 थे. 2,70,000 में से 1,20,000 एडजस्ट कर दिया कहाँ पे? एप्लीकेशन पे. रिमेनिंग कितना बचा? 1,50,000. तो 1,50,000 में से 1,20,000 एडजस्ट हो गया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे. अभी भी 30,000 एक्स्ट्रा है. अब फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है? फर्स्ट कॉल पे मंगाने हैं 3 रुपीज. कितने शेयर है? 40,000. तो 40,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना होता है? 1,20,000. बट अभी मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा है? 30,000 ही है. तो ये 30,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे. समझ में आ गई बात? बी कैटेगरी. कितनी एप्लीकेशन आई है? 50,000 एप्लीकेशन आई है. सो 50,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने आए? 1,50,000. 1,50,000. कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? बी कैटेगरी में भी अपन ने 40,000 शेयर्स अलॉट करें. एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 पर शेयर. कितने हो गए? 1,20,000. तो 1,50,000 रिसीव हुए. आउट ऑफ 1,50,000 अपन ने 1,20,000 एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 30,000. रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 30. अब बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 40,000 शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर. तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,20,000. लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 30,000 ही एक्स्ट्रा अमाउंट है. तो ये पूरा का पूरा 30,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे. तो आगे फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा. सी कैटेगरी. कितनी एप्लीकेशन आई है? 20,000. सो 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने आए? 60,000. 60,000 रिसीव हुए इन सी कैटेगरी. कितने शेयर्स अलॉट हुए? 20,000. सो 20,000 इंटू 3 के हिसाब से 60,000 एडजस्ट हो गए कहाँ पे? एप्लीकेशन पे. तो 60,000 रिसीव हुए, 60,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे. तो यहां कुछ अमाउंट नहीं बचा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या रिफंड के लिए. यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपन को रिसीव हुआ, उसमें से अपन ने 1,50,000 तो एडजस्ट कर दिया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे. एंड 30,000 अपन ने एडजस्ट करा कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे. तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 60,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर. तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया? 1,80,000. तो आउट ऑफ 1,80,000 आपने 1,50,000 तो एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे. तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 और 30,000 आपने एडजस्ट करा है फर्स्ट कॉल पे. तो यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस कितना? 30,000. ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा बता रहा हूं
कि जो अमाउंट अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा रिसीव होता है उसको कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट नहीं करते, केवल जो फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस में रिसीव होता है वही अमाउंट कॉल्स इन एडवांस में जाता है। तो यहां पे आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 कॉल्स इन एडवांस 1,80,000। ये जो अलॉटमेंट पे एडवांस में है इसको आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट करना है। ये जो फर्स्ट कॉल पे एडवांस में आ गया ये अमाउंट ट्रांसफर होगा कॉल्स इन एडवांस में। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही कर रखा था कि पूरा का पूरा अमाउंट 1,80,000 सपोज करो है तो उसको कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया। जो अमाउंट अपन को अलॉटमेंट पे रिसीव होता है एडवांस में, दैट अमाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे अमाउंट अपन को रिसीव होता है ओनली दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। नाउ क्या कह रहा था आगे, नेक्स्ट एंट्री करनी है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन कह रहा है शोल्डर है ऋषभ जिसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, who belongs to category B did not pay the allotment money। लेकिन आप इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हो कि बी कैटेगरी वालों का ऑलरेडी कुछ अमाउंट यहां पे अलॉटमेंट पे आ चुका है, यानी ये जो ऋषभ है इसका भी कुछ अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे हमें रिसीव हो गया होगा। जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बचा है वो ऋषभ ने पे नहीं करा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो बात आती है ऋषभ का कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका और कितना बैलेंस अमाउंट है जो इसने पे नहीं करा, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, इसके क्या दे रखा है, ये इसके दे रखे हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं। क्या निकालेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, किसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। ये ऋषभ बिलोंग्स टू कैटेगरी बी। तो क्या निकालने हैं, अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। तो बी कैटेगरी का को यूज करेंगे, क्या निकालने हैं अपन को, अलॉटेड। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने हैं 1500। तो कितना आएंगे आपके 1200, कितने हो गए 1200, यानी इसने 1200 इसको कितने 1200 शेयर्स इसको क्या हुए हैं, अलॉट हुए हैं। इसने अप्लाइड करा था कितने के लिए, 1500 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे, 1200 शेयर्स कंपनी ने इसको क्या करें, अलॉट करें। तो स्टार्टिंग में जब 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, स्टार्टिंग में जब इसने ऋषभ ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो कितना अमाउंट पे करा होगा, एप्लीकेशन मनी कितना है 3 पर शेयर। तो 1500 इंटू 3 के हिसाब से कितना अमाउंट दिया होगा, 4500। कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करें, 1200। तो 1200 इंटू 3 के हिसाब से इसका 3600 एडजस्ट हो गया कहां पे, एप्लीकेशन पे। अब 4500 आए थे, आउट ऑफ 4500 3600 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग कितना बचा 900। तो ये जो रिमेनिंग 900 है, ये रिमेनिंग 900 एडजस्ट हो जाएगा कहां पे, अलॉटमेंट पे, राइट। अब आगे कितना मंगाना था इससे अलॉटमेंट पे, कितने थे टोटल इसके शेयर, 1200 थे, एंड अलॉटमेंट मनी कितना है 3 पर शेयर। तो कितना मंगाना था 3600। आउट ऑफ 3600 900 अपन को ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा 2700। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है 2700, ये अमाउंट इसने पे नहीं करा। ये जो बैलेंस अमाउंट है 2700, ये इसने पे नहीं करा। अब एक बार अलॉटमेंट के साथ आप प्रीमियम भी मंगा रहे हो, तो एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं। शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट कितना है 3 का है, 3 के अंदर शेयर कैपिटल कितनी है 2 की, कितने शेयर थे इसके 1200। तो 2 इंटू 1200 के हिसाब से कितना हुआ 2400। तो शेयर कैपिटल के कितने मंगाने 2400 अलॉटमेंट पे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना मंगाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1, तो 1 इंटू 1200 के हिसाब से कितना मंगाना है 1200। ये जो 900 एडवांस में रिसीव हुआ है, अपन क्या अज्यूम करते हैं कि जो अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है
वो अमाउंट पहले किसका होता है? शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल के बाद किसका मानते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल कितनी मंगानी है? 2400। मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया था? 900। तो ये पूरा का पूरा 900 किसका मानेंगे? शेयर कैपिटल का। यानी 2400 कैपिटल के मंगाने थे अलॉटमेंट पे, उसमें से 900 आ गए, रिमेनिंग कितने बचे? 1500। तो एक तो ये 1500 तो किसके पे नहीं करे? 1500 तो शेयर कैपिटल के पे नहीं करे, 1500 तो शेयर कैपिटल के पे नहीं करे, और 1200 किसका पे नहीं करा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का पे नहीं करा। इस तरीके से ये 2700 रुपीज इसका रिसीव नहीं हुआ। अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ अलॉटमेंट पे? ओवरऑल टोटल 1 लाख शेयर्स थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। तो टोटल आपको कितना मंगाना था? 3 लाख। टोटल कितना मंगाना था? 3 लाख। आउट ऑफ 3 लाख 1,50,000 ऑलरेडी हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो लेस करेंगे इसमें से अपन रिसीव इन एडवांस, लेस करेंगे इसमें से रिसीव इन एडवांस कितना? 1,50,000। तो रिमेनिंग कितना बचा? 1,50,000 बचा रिमेनिंग। और ये जो रिमेनिंग 1,50,000 बचा है, इसमें से ये 2,700 अपन को रिसीव नहीं हुआ। तो लेस अमाउंट नॉट रिसीव, लेस अमाउंट नॉट रिसीव कितना? 2,700। यानी अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है? 1,47,300। ये अमाउंट आपको क्या हो रहा है? अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है। तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ? 1,47,300। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री पास होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव की। अब यहां पे आपको एंट्री करनी कैसे? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, नीचे लिखा है क्वेश्चन में। तो एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 1,47,300। 1,47,300। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट अपन को रिसीव नहीं हुआ है? 2,700। 2,700 आपको रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। 1,50,000। समझ में आ गई एंट्री है? नाउ नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री होगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3। नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन को पास करनी है काय की? नेक्स्ट एंट्री अपन को पास करनी है फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। टोटल कितने शेयर है? 1 लाख है। एक शेयरहोल्डर है ऋषभ, जिसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उसको 1200 शेयर्स अलॉट किए थे। कह रहा है उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो 1 लाख में से एक शेयरहोल्डर है ऋषभ, जिसको अपन ने 1200 शेयर्स अलॉट करे, उसने आपका फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा, ठीक है ना। और एक शेयरहोल्डर है सुधा, जिसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। वन शेयरहोल्डर सुधा who applied for 1800 shares and who belongs to category A,
कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? ए कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। कह रहे हैं इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन आप यहां पे इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हो कि ये जो आपका ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी वालों का 30,000 फर्स्ट कॉल पे ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका था। जो हमारी ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी वालों का ऑलरेडी 30,000 आपको फर्स्ट कॉल पे एडवांस में रिसीव हो चुका था। यानी ये जो शोल्डर है सुधा, इसका भी कुछ अमाउंट फर्स्ट कॉल पे आ चुका होगा। ये जो शोल्डर है सुधा, इसका भी कुछ अमाउंट ऑलरेडी फर्स्ट कॉल पे आ चुका होगा, क्योंकि ये सुधा किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है? ए कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। तो वापस अब अपन को वो निकालना है कि सुधा का कितना अमाउंट फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो गया और कितना बैलेंस अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो उसके लिए वापस आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्या दे रखे हैं? अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं सुधा के। क्या निकालेंगे इसके? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है? ए कैटेगरी को। तो ए कैटेगरी का डेटा यूज करेंगे। क्या निकालना है आपको? अलॉटेड शेयर्स। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने? 1800। तो यहां से आपके अलॉटेड शेयर्स निकलेंगे कितने? 800। यानी इसको सुधा को कितने? 800 शेयर्स क्या हुए थे? अलॉट हुए थे। सुधा ने अप्लाई किया था कितने के लिए? 1500 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने उसको अलॉट कितने करे? 800 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए हैं। तो स्टार्टिंग में जब 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो 800 इंटू 3 के हिसाब से कितना अमाउंट पे करा? तो 5,400 पे करे। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करें? 800। तो 800 इंटू 3 के हिसाब से 2,400 एडजस्ट हो गया कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो 5,400 में से 2,400 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। रिमेनिंग कितना बचा? 3,000 रिमेनिंग बचा। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 800 शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर। तो 800 इंटू 3 के हिसाब से कितना होता है? 2,400। देखना दोबारा, 5,400 स्टार्टिंग में पे करे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसमें से 2,400 एडजस्ट हुआ कहां पे? एप्लीकेशन पे। कितने बचे रिमेनिंग? 3,000। 3,000 में से 2,400 एडजस्ट हो गया कहां पे? अलॉटमेंट पे। रिमेनिंग कितना बचा? 600। तो ये जो रिमेनिंग 600 है कहां एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल पे इसका एडजस्ट हो गया। अब यहां पे आपसे कितना मंगाना है इससे फर्स्ट कॉल पे? 800 शेयर्स हैं, तो 800 इंटू फर्स्ट कॉल कितना है? 3। तो 800 इंटू 3 के हिसाब से कितना मंगाना है? 2,400। 2,400 में से ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया इसका? 600 ऑलरेडी रिसीव हो गया है। तो रिमेनिंग कितना बचा? 1,800। तो ये जो रिमेनिंग 1,800 रुपीज है, ये इसने पे नहीं करे, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। तो अब यहां पे रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? 2 काम करने, एक तो ये कॉल से एरियर हो गया है, और प्लस आपको ये जो कॉल से एडवांस है उसको एडजस्ट भी करना है। ये एंट्री नंबर 4 में आपने कॉल से एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया था, तो उसको आपको एडजस्ट भी करना है यहाँ पे। तो क्या एंट्री होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव होगा? ये 1 लाख थे ना, 1 लाख में से एक तो ये ऋषभ थी, इसने पे नहीं करा, तो 1 लाख में से 1200 माइनस करें, इसका भी निकाल लेते हैं। देखो अपन देखो फर्स्ट कॉल पे ओवरऑल कितना मंगाना था अपन को? 1 लाख शेयर्स थे। कितने थे? 1 लाख थे। 1 लाख, और आपका फर्स्ट कॉल मनी कितना है? 3 पर शेयर। तो यानी आपका जो फर्स्ट कॉल है वो कितने का हो गया? 3 लाख रुपए मंगाने थे। फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना था आपको? 3 लाख लेस रिसीव इन एडवांस। कितना अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव हो गया? ये 30,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गया था। रिमेनिंग कितना बचा? 2,70,000 रिमेनिंग बचा, लेस अमाउंट नॉट पेड बाय ऋषभ। ऋषभ ने कितना पे नहीं करा?
ऋषभ को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 1200, और ऋषभ ने पूरे 3 रुपीज पे नहीं करे, तो 1200 इंटू 3 के हिसाब से कितना? 3600, 3600 लेस अमाउंट नॉट पेड बाय सुधा। सुधा ने कितना अमाउंट पे नहीं करा? अमाउंट नॉट पेड बाय सुधा, तो सुधा का ये अमाउंट निकाला था अपन ने कितना? 1800। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 3600 और ये 1800 और आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 2,64,600, 2,64,600 ये अमाउंट आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ। समझ में आई क्या बात? टोटल कितने थे आपके? 1 लाख शेयर्स थे, एंड फर्स्ट कॉल मनी कितना था? फर्स्ट कॉल मनी था 3 पर शेयर, तो टोटल कितने होते हैं? 3 लाख। 3 लाख में से 30,000 अपन को एडवांस में रिसीव हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? 2,70,000, और जो रिमेनिंग बचे उसमें से एक तो ऋषभ ने नहीं दिए, ऋषभ ने पूरे 3 रुपीज पे नहीं करे 3600, और किसने नहीं दिए? सुधा ने। सुधा ने कितने पे नहीं करे? 1800। तो ये अमाउंट आपको टोटल रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे। क्लियर है? अब देखिए क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 2,64,600, 2,64,600। ये एंट्री नंबर 4 में कॉल से एडवांस क्रेडिट किया था, अब इसको आप यहां पे एडजस्ट करेंगे। कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट कितना था? कॉल से एडवांस आपका 30,000। कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल से एरियर, ये दोनों अमाउंट 3600 और 1800 कितना होता है? 36 और 1800 5,400। कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट 5,400 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 3 लाख, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। समझ आइए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट किससे? जो अमाउंट रिसीव हुआ, तो फर्स्ट कॉल पे ये रिसीव हुआ है, फर्स्ट कॉल पे ये रिसीव हुआ है 2,64,600। फिर एंट्री नंबर 4 में कॉल से एडवांस को क्रेडिट किया था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहां पे डेबिट कर दिया। कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट क्या आएगा? जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो ये 3600 और 1800 ये रिसीव नहीं हुए हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल टोटल अमाउंट हो गया। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव, तो सेकेंड कॉल मनी रिसीव करेंगे, कितनी रिसीव होगी? टोटल 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से एक शेयरहोल्डर था ऋषभ, जिसको अपन ने 1200 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने सेकंड कॉल अमाउंट पे नहीं करा। और एक शेयरहोल्डर है सुधा, जिसको अपन ने 800 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने भी सेकंड कॉल पे नहीं करा, और सेकंड कॉल पे कुछ भी एडवांस में नहीं है, सेकंड कॉल पे किसी का कुछ भी एडवांस में नहीं आया था, सेकंड कॉल का पे किसी का कोई अमाउंट एडवांस में रिसीव नहीं हुआ, यानी पूरा अमाउंट इनका रिसीव नहीं हुआ है। तो यानी सेकंड कॉल मनी कितने से रिसीव हुआ? 98,000 शेयरहोल्डर से आपको आपका सेकंड कॉल मनी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 98,000 इंटू 2, 98,000 इंटू 2। कॉलसेन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है? कॉलसेन एरियर 2,000 शेयरहोल्डर ने 2 रुपीज पे नहीं करे, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल 1 लाख इंटू 2, टू शेयर सेकेंड कॉल 1 लाख इंटू 2। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 इंटू 2, कॉलसेन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 2, टू शेयर सेकेंड कॉल 1 लाख इंटू 2।
Clear? Next entry. Now after second call, Rishabh share is forfeited by the company. Rishabh share is forfeited by the company. शेयर काय पे इशू हुए थे? प्रीमियम. प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट. और इस ऋषभ ने अलॉटमेंट पे नहीं करा. और अलॉटमेंट पे क्या पे नहीं करा था? 1500 तो कैपिटल का और 1200 सिक्योरिटी प्रीमियम का. यानी इस एंट्री नंबर 3 में प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ. तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो शेयर कैपिटल के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. किससे? जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे. तो क्या एंट्री होगी? अलग अलग कर रहा हूं मैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. पहले मैं सुधा ये ऋषभ के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कौन से शेयर फॉरफिट होते हैं? जो अलॉट हुए हैं. तो ये ऋषभ को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 1200. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे? कॉल्ड अप कैपिटल. सभी मंगा लिया, पूरा सेकंड कॉल तक का सब कुछ मंगा लिया है. तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपीज. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट किससे? जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ. तो ये 1200 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ. कितने का? 1200 का. ऊपर आपने कॉल से एरियर अकाउंट को ओपन किया था, तो अब फॉरफिट करते समय कॉल से एरियर अकाउंट ही क्या होगा? क्रेडिट होगा टू कॉल से एरियर. कितना? एक तो 2700 इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे, 2700 अलॉटमेंट पे नहीं दिए, और 1200 इंटू 3 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए और 2 सेकंड कॉल पे नहीं दिए. तो 1200 इंटू 5 ये अमाउंट इसने पे नहीं किया था. 2700 तो काय का? अलॉटमेंट का. और ये 5 कैसे हो गए? 3 इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 2 इसने सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो टोटल 5 नहीं दिए. तो 1200 इंटू 5 ये इसका कॉल से नेचर था. 2 शेयर फॉरफीचर. 2 शेयर फॉरफीचर कितना अमाउंट फॉरफिट होगा? ये 3600 तो ये जो एप्लीकेशन का था और 900 ये जो अलॉटमेंट का था. टोटल कितना हो गया? 4500. तो इसका कितना अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा? 4500. समझ में आया? 3600 तो एप्लीकेशन के आगे थे इसके, और 900 इसका अलॉटमेंट पे कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ था. तो ये दोनों कैपिटल अमाउंट इसके फॉरफिट हो गए जो रिसीव हुए थे. अब बात करते हैं सुधा. कितने शेयर अलॉट हुए थे सुधा को? सुधा को अलॉट किए थे अपन ने कितने? 800 शेयर्स अलॉट किए थे. शेयर काय पे इशू हुआ था? प्रीमियम. प्रीमियम काय पे मंगा रहे थे? अलॉटमेंट. लेकिन सुधा अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर चुकी. यानी सुधा के केस में क्या हुआ? प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया. तो अब इस कंडीशन में फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा. तो क्या होगी फॉरफीचर की एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. किससे डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल. तो कितने शेयर थे इसके? 800 शेयर्स अलॉट किए थे, और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? पूरी 10. टू कॉल्स इन एरियर. टू कॉल्स इन एरियर कितना है? कॉल्स इन एरियर 1800 तो इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करे थे. 1800 तो फर्स्ट कॉल पे नहीं करे थे, और 800 इंटू 2 के हिसाब से सेकंड कॉल पे इतना पे नहीं करा. 800 इंटू 2 एंड 2 शेयर फॉरफीचर. कितना अमाउंट फॉरफिट होगा? देखो ध्यान से. 2400 तो ये पूरे फॉरफिट हो जाएंगे. अलॉटमेंट पे 2400 दिए थे, लेकिन पूरे 2400 नहीं होंगे फॉरफिट. क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हो? 3, और 3 में 1 प्रीमियम है, और प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता. तो 2400 में से कितना फॉरफिट होगा? 800 इंटू 2 कितना? 1600 ही फॉरफिट होगा. तो एप्लीकेशन के 2400 फॉरफिट होंगे. 1600 किसका फॉरफिट होगा? अलॉटमेंट पे. और ये 600 किसका फॉरफिट होगा? फर्स्ट कॉल का. 600 फर्स्ट कॉल के भी आगे थे. कितना हो गया टोटल? 2400 प्लस 1600 प्लस 600 कितना? 4600 इसके क्या हो जाएंगे? फॉरफिट हो जाएंगे. 2 शेयर फॉरफीचर 4600.
समझ में आ गई है अलॉटमेंट वाली बात? 2400 दिए थे, लेकिन इसके अंदर 1 तो प्रीमियम है, और प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है, केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही फॉरफिट होता है। तो कैपिटल के 2 थे, 2 इसके फॉरफिट हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे? इन फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर दिया। कैसे? 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 के शेयर को 7 में री इश्यू करा और फुल्ली पेड अप है, मतलब आगे और कुछ नहीं मंगाना है। तो 3 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो क्या एंट्री होगी री इश्यू की? फॉरफिट कितने शेयर हुए थे? 1200 तो ऋषभ के और 800 सुधा के, टोटल 2000 शेयर। तो 2000 शेयर को 7 में री इश्यू कर दिया 7 रुपीज में। तो क्या एंट्री होगी आपकी री इश्यू की? बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7, सॉरी 2000 इंटू 7। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट जो डिस्काउंट का अमाउंट है 2000 इंटू 3, एंड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10। अब क्या होगा? जो शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो पहले अपन बात करते हैं ऋषभ, कि ऋषभ के फॉर फीचर में से कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर, कितना क्रेडिट करा है? 4500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। ऋषभ के कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे? 1200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। ऋषभ के कितने? पूरे 1200 शेयर री इश्यू कर दिए, एंड माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 3 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ऋषभ के 1200 शेयर्स पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 1200 इंटू 3, 3600। कितना बचा? 4500 माइनस 3600, 900। ऐसे अब सुधा की बात करते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर, कितना क्रेडिट किया था फॉर फीचर में? 4600। कितना क्रेडिट किया था? 4600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू हो गए? 800 माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 3 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 800 शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 2400। तो 4600 में से 2400 माइनस करें, कितना बचा? 2200। टोटल कितना हुआ ये? 3100। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3100। बताओ किसी भी एंट्री में कोई डाउट किसी को? सर यस सर जो शेयर फॉर फीचर की एंट्री थी वो मैंने एक साथ पास कर दी थी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 72। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 72, इसको आपको एग्जाम से पहले एक दिन पहले रिवाइज करके जाना है इस क्वेश्चन को। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले एक दिन पहले सॉल्व करके जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 72, पेज नंबर 7.129। पढ़िए। एक्स लिमिटेड इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 lakh इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ₹5 पर शेयर। एक कंपनी है जो अपने 1 lakh शेयर्स इशू कर रही है, 1 lakh शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 + 5 ईच के हिसाब से, यानी 15 रुपीज में शेयर क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन
पेबल 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, यानी कितना हो गया ये 2 + 5 हो गया। 7 रुपीज मंगा रहे, 2 कैपिटल है और 5 क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड पेबल 3 ऑन फर्स्ट कॉल, पेबल 3 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर्स, टोटल 1,50,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई है। 1,50,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट्स एंड प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है। मतलब इन 1,50,000 शेयर्स को आपने 1 लाख शेयर्स क्या करे अलॉट कर दिए। 1,50,000 शेयर्स को आपने 1 लाख शेयर्स क्या करे अलॉट कर दिए। द मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर यूटिलाइज टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। सुरुचि 1 शेयरहोल्डर, सुरुचि who applied for 1800 शेयर्स, जिसने 1800 शेयर्स के लिए क्या किया था अप्लाई किया था। who applied for 1800 shares failed to pay allotment and call money, इसने allotment and first call का अमाउंट पे नहीं करा, allotment और first call का अमाउंट पे नहीं करा। and this share was subsequently forfeited and after first call this share were forfeited by the company। 2/3 of the forfeited shares, जो भी शेयर्स फॉरफिट हुए उसमें से 2/3 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा क्या करा री इश्यू कर दिया। क्या करा री इश्यू कर दिया, कितने में 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, कितने में 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,50,000, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 इंटू 5, 1,50,000 इंटू 5। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं आपको 1 लाख, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 5 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 5, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 5। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 7, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 7 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख इंटू 5, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख इंटू 5। अब 1 लाख शेयर इश्यू करने थे एंड 1,50,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई, तो 50,000 एप्लीकेशन क्या हुआ एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 50,000 एप्लीकेशन आपके पास एक्सेस में रिसीव हुई है, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने आगे कहां एडजस्ट करा है, तो उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बनाएंगे क्या वर्किंग नोट। फर्स्ट कॉलम इज total application money received, second is adjusted on application, adjusted on allotment, adjusted on first call and refund। First column is total
application money received, total application money received. Second column is adjusted on application. Next column is adjusted on allotment. Next column is adjusted on first call. And last column is refund. Now एक ही कैटेगरी, यहाँ पे एक कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई, 1,50,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर. तो कितना रिसीव हुआ, 7,50,000. 7,50,000 रिसीव हुए. कितने शेयर्स अलॉट करें, 1 लाख. सो 1 लाख इंटू 5 के हिसाब से आपका 5 लाख रुपीज एडजस्ट हो गया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे. तो 7,50,000 रिसीव हुए. आउट ऑफ 7,50,000 5 लाख इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन. रिमेनिंग कितना बचा, 2,50,000. अब कितना मंगाना है अलॉटमेंट पे, 1 लाख है. अलॉटमेंट मनी कितना है, 7 पर शेयर. तो 1 लाख इंटू 7 के हिसाब से 7 लाख होता है. बट यहाँ तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 2,50,000 है. तो पूरा का पूरा 2,50,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे. आगे फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं होगा और ना कुछ अमाउंट सेकंड कॉल पे होगा. यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ उस एक्सेस अमाउंट को आपने पूरा का पूरा एक्सेस अमाउंट का एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे. तो एंट्री क्या पास होगी इसकी, एडजस्टमेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 5. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 5. ये जो एक्सेस अमाउंट है 2,50,000 कहां एडजस्ट करा है, अलॉटमेंट पे. तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितना हो गया, 2,50,000. 2 शेयर अलॉटमेंट कितना, 2,50,000. नेक्स्ट एंट्री पास करनी आएगी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. लेकिन एक क्या कहते हैं, एक शोल्डर है सुरुचि, जिसने 1,800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. कह रहा है इसने अलॉटमेंट पे ही नहीं करा. लेकिन आप इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हो कि ऑलरेडी सारे शेयरहोल्डर्स का कुछ अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है. यानी ये जो सुरुचि है इसका भी कुछ अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे ऑलरेडी क्या हुआ होगा, रिसीव हो गया होगा. तो यानी जो बैलेंस अमाउंट बचा है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय सुरुचि, इसलिए यहां पे लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा. तो बात आती है कितना अलॉटमेंट पे अमाउंट आया और कितना नहीं आया, वो कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए वो आपको अप्लाइड शेयर्स गिवन है, क्या निकालने पड़ेंगे इसके, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कि कितने शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं. एक ही कैटेगरी यहाँ पे तो 1 लाख. तो कितने हो जाएंगे अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 1,800 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने आ गए, 1,200. यानी इस कंपनी ने इसको 1,200 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट किए थे. इसने अप्लाई किया था कितने, 1,800 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे, 1,200 शेयर्स इसको अलॉट करे. तो स्टार्टिंग में 1,800 इंटू 5 के हिसाब से कितना अमाउंट पे करा, 9,000 ही आ रहा है. कितना पे करा, 9,000. ठीक है. कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करे इसको, 1,200. तो 1,200 इंटू 5 के हिसाब से इसका 6,000 रुपीज एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन पे. तो 9,000 में से 6,000 एडजस्ट हो गया कहां पे, एप्लीकेशन पे. रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 3,000. तो ये रिमेनिंग 3,000 एडजस्ट हुआ कहां पे, अलॉटमेंट पे. अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 1,200 शेयर्स है. अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर, कितना मंगाना है, 8,400. 8,400 में से 3,000 इसका ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है. तो रिमेनिंग कितना बचा, 5,400 बचा रिमेनिंग अमाउंट.
तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये अमाउंट इसने पे कितना 5400 कितना नहीं है इसका 5400। अब देखो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अलॉटमेंट पे कितना है 7 है, 7 में 2 कैपिटल है और 5 प्रीमियम है। तो कैपिटल कितना है 2 रुपीज है शेयर कैपिटल का, और कितने शेयर थे इसके 1200। तो 2 इंटू 1200 के हिसाब से कितना होता है 2400। तो अलॉटमेंट पे 2400 तो काय का मंगाना था शेयर कैपिटल का, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 7। तो 7 इंटू 1200 के हिसाब से कितना होता है, सॉरी 5 का है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है 5, तो 5 इंटू 1200 के हिसाब से 6000 रुपीज आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगाना है। देखो ध्यान से, अपन को टोटल अलॉट इस शेयरहोल्डर से अलॉटमेंट पे 8400 मंगाना था। 8400 में से 2 तो आपका शेयर कैपिटल का है, यानी 2400 तो शेयर कैपिटल के मंगाने हैं, और 5 रुपीज आपको काय का मंगाना है सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगाना है। अब अपन क्या मांगते हैं, अब देखो आपको क्या मंगाना है 2400 है। तो अब यहां पे क्या हो गया कि टोटल 3000 है, 3000 है। अपन मानते हैं ये पहले किसका है कैपिटल का है, ठीक है। तो कैपिटल कितना है 2400 है। तो 3000 में से 2400 तो किसके हो गए कैपिटल के हो गए, मतलब इसके कैपिटल का तो सारा अमाउंट आ गया। तो ये जो 3000 है 3000 में से 2400 तो कैपिटल का हो गया। अभी भी इसमें से 600 बच रहा है, तो वो जो 600 बचा है वो किसका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। यानी जो रिमेनिंग 5400 है ये रिमेनिंग 5400 का सिक्योरिटी प्रीमियम इसने पे नहीं करा। तो ये जो अमाउंट है ये किसका रिसीव नहीं हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। आगे बात समझ में, टोटल 3000 था, एडवांस में जो आया वो कितना था 3000। तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि पहले ये अमाउंट कैपिटल का आया है और कैपिटल के बाद प्रीमियम का आया है। तो यहां पे शेयर कैपिटल का कितना था 2400। तो 3000 में से माना 2400 पहले 2400 तो काय के कैपिटल, यानी सुरुचि का अलॉटमेंट पे कैपिटल का तो सारा अमाउंट आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 6000। तो 3000 में से 2400 तो कैपिटल का हो गया, और रिमेनिंग 600 काय का रिसीव हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो रिमेनिंग कितना बचा 5400। तो ये जो रिमेनिंग 5400 है सिक्योरिटी प्रीमियम ये इसने पे नहीं करा है। समझ में आ गई बात ये। तो अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, ये क्लियर है सबको। हाँ, तो हाँ अलॉटमेंट पे टोटल कितना हो गया आपका 1 लाख। अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था आपको 1 लाख इंटू 7 के हिसाब से। अलॉटमेंट पे आपको मंगाना था कितना 7 लाख। कितना मंगाना था 7 लाख लेस रिसीव इन एडवांस। कितना आपको एडवांस में रिसीव हो गया, ऑलरेडी 2,50,000 आपको एडवांस में रिसीव हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा, कितना बचा ये आपका 4,50,000। रिमेनिंग कितना बचा 4,50,000 लेस अमाउंट नॉट रिसीव। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से कितना रिसीव नहीं हुआ, लेस अमाउंट नॉट रिसीव कितना, ये 5,400 आपको रिसीव नहीं हुआ। तो 4,50,000 माइनस 5,400 तो यानी यहां पे कितना रिसीव हो रहा है 4,44,600। ये अमाउंट आपको क्या हुआ अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है। ओवरऑल कितने थे 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 लाख इंटू 7 के हिसाब से 7 लाख मंगाना था। 7 लाख में से 2,50,000 आपको ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गया। रिमेनिंग कितना बचा 4,50,000। तो 4,50,000 में से 5,400 ये और आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है। तो यहां पे एंट्री क्या पास होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4,44,600, 4,44,600। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 lakh into 3, 1 lakh into 3। अब टोटल 1 लाख शेयर थे। अब ये जो शेयर होल्डर थी सुरुचि, जिसको अपन ने 1200 शेयर्स अलॉट करें, इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो 1 लाख में से 1200 शेयर होल्डर्स का फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी फर्स्ट कॉल मनी जो रिसीव हो रहा है वो किसका रिसीव होगा, 98,800 शेयर होल्डर से, 98,800 शेयर होल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 98,800 into 3 to share first call, to share first call 98,800 into 3। देखो अब नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे काय की, इस सुरुचि के शेयर्स को फॉरफिट करने की। शेयर काय पे इश्यू हुए थे, प्रीमियम, प्रीमियम अपन काय पे मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं। और इसने यहाँ पे क्या हुआ, अलॉटमेंट के साथ ये जो प्रीमियम है 6000 का, उसमें से इसने 5400 का प्रीमियम पे नहीं करा, यानी इस एंट्री नंबर 3 में प्रीमियम ड्यू तो हो गया, लेकिन उस प्रीमियम ड्यू में से 5400 का प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो जब शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो उस कंडीशन में अगर प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट अगर वो रिसीव नहीं होता, तो उस कंडीशन में शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो क्या एंट्री होगी फॉरफिट करने की शेयर्स को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। कितने शेयर्स अलॉट हुए थे इसको, 1200, और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, 5400 का प्रीमियम इसको रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 5400, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे इसने पूरा अमाउंट पे नहीं करा था, कितना, 1200 into 3, एंड टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर कितना फॉरफिट होगा, ये 6000 तो ये फॉरफिट हो जाएंगे, और ये जो 3000 है इसके अंदर 600 का तो प्रीमियम है, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है। 3000 में से कैपिटल अमाउंट कितना है, इस 3000 में से कैपिटल अमाउंट 2400 ही है, तो 3000 में से केवल 2400 ही फॉरफिट होंगे। तो 6000 तो ये एप्लीकेशन के, और 2400 किसके, अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट पे कितना आया था, 3000 आया था, तो 3000 में से 2400 तो किसका था, कैपिटल का, और 600 का था प्रीमियम का, और प्रीमियम अपन फॉरफिट नहीं करते, केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही फॉरफिट होता है। तो 6000 तो ये और 2400 ये, तो कितना फॉरफिट होगा, 8400। तो टू शेयर फॉरफीचर 8400। अब क्या कह रहा है कि जो शेयर्स फॉरफिट किए थे, कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे आपने, 1200, तो इन 1200 जो शेयर्स आपने फॉरफिट करे थे उसके 2/3 शेयर्स अपन ने रीइश्यू कर दिए, तो उसका 2/3 कितना होगा, 800।
तो यानी इन 800 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया कितने में, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में, यानी 2 का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 8 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 2 शेयर कैपिटल 800 इंटू 10। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट करा है, 8400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट 1200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू है 800, और माइनस क्या करेंगे इसमें से, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, कितने का डिस्काउंट है 1600 का, दिस इज द डिस्काउंट 1600। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है आपका कितना 4000। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दोबारा बता रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से एक दिन पहले इसको आप रिवाइज करके जाइएगा।